اسلام ایک ایسا کیڑا جو 1400 سال سے انسانیت کو تنگ کر رہا ہے، ایک ایسا کیڑا جو انسانیت کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، ایک ایسا چمونا جو نکلتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کیڑے نے انڈے دے دیے ہیں اور ان انڈوں میں سے بچے نکل چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے، اسلام کے کیڑے۔ ہیلو، میں ہوں رے دی پروڈیوسر، ایک ایتھیسٹ، ایک ایکس مسلم۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ اسلام چھوڑ کے کیسے موریلٹی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور میرا جواب ہوتا ہے کہ ایک بیٹل کو بھی موریلٹی کی سمجھ ہے۔ اگر آپ کو موریلٹی سیکھنے کے لیے ایک 7ویں صدی کی کتاب کی ضرورت ہے تو پھر آپ کے کچھ پرزے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کو قرآن کی نہیں سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے اسلام کیوں چھوڑا؟ کیا محمد کی 9 سال کی عائشہ کے ساتھ شادی کی وجہ سے؟ کیا بنو قریظہ کی جینوسائیڈ کی وجہ سے، جس میں ہمارے رحمت للعالمین نے کتنے یہودیوں کو بے دردی سے مار ڈالا؟ 500، 600، 900، who knows, who cares؟ اور پھر ان کی بہن بیٹیوں کو لونڈی بنا لیا۔ بھائی ان کے ساتھ کچھ تو کرنا تھا نا، ایسے ہی چھوڑتے تھے کیا؟ یا پھر میں نے اسلام کو قرآن کی بے تحاشا سائنٹیفک، مورل اور نیریٹو چیراند کی وجہ سے چھوڑا۔ قرآن ایک ایسی بھیجا فرائی کتاب جس کو جتنا پڑھو اتنا ہی بندہ یا بندی کنونس ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑا لوچا ہے۔ رہن دے اللہ میاں، رہن دے، تھلیا والے وسلم، تھلیا۔ تھینک یو سلطان سلاطین فار دیٹ ون۔ میں نے اسلام ان سب ریزنز کی وجہ سے چھوڑا، مگر میرے لیے یہ 5 کیڑے سب سے زیادہ پھدک رہے تھے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ کیڑا نمبر 1، قرآن اللہ کی ڈکٹیشن ہے محمد کو، جو پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا۔ وارے اللہ، کبھی کسی ایجوکیٹڈ آدمی کے پاس نہیں آتے، ہمیشہ جہالت سے بھرے مڈل ایسٹرن بیک واٹر میں ہی نمودار ہوتے ہو۔ کبھی کسی سوکریٹیز یا کسی آریہ بھٹا یا لاؤ تسو کے پاس جانا گوارا نہیں کیا، بس مڈل ایسٹ تک ہی۔ شاید اللہ کو ویزا نہیں ملا۔ مگر یہاں پر بھی ہول ہے، جھول ہے، معاملہ گول ہے۔ اسی قرآن اللہ کی ڈکٹیشن ہے جبریل کے تھرو۔ اللہ نے جبریل کو کہا کہ جا کے محمد کو بولو کہ تم اپنے منہ بھولے بیٹے زید کی بیوی یعنی اپنی ڈاٹر ان لو کے ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ وارے اللہ اور تیریاں چلاکیاں۔ اور جبریل جس کے کان سے کندھے تک کا سفر 700 سال کا ہے، سالہ غار ہرا میں کیسے گھس گیا؟ اور اللہ نے خود کیوں گوارا نہیں کیا اپنے سب سے زیادہ محبوب شخص سے خود بات کرنا؟ کیا اللہ اس دن انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا؟ جبرائیل ایک سستا فرشتہ، ایک دفعہ تو شیطان بھی جبرائیل کی جگہ آ گیا تھا، منت، اللت اور العزا کی سفارش کرنے۔ توبہ توبہ توبہ۔ اینیوے، جبریل کی زبانی اور محمد کی کہانی پہ اسلام زندہ ہے، اور اس اسلام کی وجہ سے لوگ مر رہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹوری سچی ہے تو میں ایک نائجیرین پرنس کو جانتا ہوں جو آپ کے اکاؤنٹ میں $500 ملین ڈپازٹ کرنا چاہتا ہے۔ کیڑا نمبر 2، محمد، ریئل یا امیجنری یا دونوں۔ اس پہ میں نے ایک شو بھی کیا تھا، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اس شو میں یہ ہائپوتھسائز کیا تھا کہ محمد عمید خلیفہ عبد الملک کی کریشن تھی، اسلامی امہ جمعہ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے۔ چلو اگر ہم غلط بھی ہیں اور محمد واقعی میں ایک ہسٹوریکل فگر تھا، تو پھر بھی وہ جبرائیل والی بات کیسے پروف ہوتی ہے؟ براک ایئر لائنز پر بیٹھ کے جنت اور جروسلم والی بات کیسے پروف ہوتی ہے؟ یہ کیسے پروف ہوتا ہے کہ محمد بن عبداللہ نام کا ایک عام آدمی اللہ سے باتیں کرتا تھا، جبرائیل سے باتیں کرتا تھا، جو اللہ کا میسج لائے کرتا تھا؟ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ 9 سال کی بچی سے شادی، بہو کے ساتھ شادی، قتل و غارت، لونڈی، قافلے لوٹنا، انسانیت کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، اور 23 سال تک بیچارے قریش والوں کا جینا حرام کرنا۔ چلیں اگر اسلام کے خود کا نیریٹو مان بھی لیں تو بھی ابن اسحاق کی سیرت کب لکھی گئی؟
मोहम्मद की वफात के कितने साल बाद? 118, और वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। अरे अल्लाह, ना तो तू रजम वाली आयत बचा सका, ना मोहम्मद की सीरत। इब्ने हिशाम को लिखनी पड़ी एक और सीरत। कौन सी सदी में? 8वीं। और मोहम्मद सल्लम की वफात कब हुई? 632। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, सवाल यह है कि इब्ने हिशाम को क्या किसी फाफे कुटनी ने बताया था कि यह सब होयासी उनकी पैदाइश से 150 साल पहले, या इल्हाम होया था, या फिर इनके पास भी जिब्राइल चाचा आए थे? सारी कहानी एक फेरी टेल है, बस एक ऐसी बेहुदा फेरी टेल जिसकी वजह से लोग पागल हो रहे हैं, गले काट रहे हैं, खून बहा रहे हैं और लोगों का जीना हराम हो चुका है। और ये हदीस, ये सही बुखारी का बुखार, ये इब्ने माजा का बाजा 200 साल बाद लिखे गए। इनको कैसे पता था कि नबी किस हाथ से पिट्ठी धोते थे? और हदीस में बातें भी इस किस्म की हैं, एक भी काम की बात नहीं। जिन उतारने के तरीके, अंडा चुराने पे हाथ काट दो, काले कुत्ते को मार दो, मेंस्ट्रुएटिंग बीवी की गोदी में सर रख के कुरान पढ़ो। वैसे हदीस लिखने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, प्यारे नबी को बदनाम कर दिया। ऐसी गंदी गंदी बातें नबी पाक के बारे में इन मनुष्यों ने ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी कि अपनी मां या बहन के सामने भी आप नहीं कर सकते। बुखारी गुस्ताख रसूल नंबर 1। तेरी तो कीड़ा नंबर 3, कुरान एकदम प्रिजर्व है बॉस, इम्यूटेबल है, 1400 साल से लोहे महफूज, समझ गए ना? वो मेरे एल्बर्ट आइंस्टाइन के मामूजाद बेटे, पहले तो कुरान के आज भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। ये जो कुरान हम इंडिया पाकिस्तान में पढ़ते हैं वो हफ्स कुरान है, इसके अलावा और भी कुरान है। और फिर कुरान के मुख्तलिफ वर्जन्स तो हजरत उस्मान ने भी चलाए थे। हैं कुरान के डिफरेंट वर्जन्स, बट लोहे महफूज का क्या हुआ? अल्लाह ने अपने कुरान को एक मुकम्मल किताब की सूरत में क्यों नहीं नाजिल किया? किसी उमर या अबू बकर या उस्मान या खाला हफ्सा की क्या जरूरत पड़ गई भाई कायनात के बनाने वाले को? इससे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि कुरान बनाने में इंसान की उंगलियों के निशान है। सच तो यह है कि यह कुरान 9वीं सदी में अब्बासियों के अंडर कंपाइल हुआ, हजरत महमूद के मरने के कितने साल बाद? डू द मैथ। फिर यूनिवर्स के क्रिएटर को इंसान की जरूरत पड़ती है, फिर अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और सबसे मजे की बात, कुरान जैसी बेकार साइंस फिक्शन से 1000 साल से भी पहले लिखी हुई इलियड और ओडिसी परफेक्टली प्रिजर्व्ड है। वेद जिन्हें ब्राह्मणों को इजाजत भी नहीं थी लिखने की, वो भी प्रिजर्व्ड हैं। वेद कितने पुराने हैं? टिबेटन बुक ऑफ द डेड भी वैसे की वैसी ही है। कन्फ्यूशियस भी लोहे महफूज है। शायद असल खुदा की किताब इनमें से कोई है। और फिर खुदा किताबें क्यों लिख रहा है भाई? खुदा है या मुंशी प्रेमचंद? देखें, प्रिजर्वेशन से घंटा प्रूफ नहीं होता, बस यही नजर आता है कि ये जल्दबाजी में बगैर एडिट की हुई एक भेजा फ्राई किताब है। 3री क्लास का बच्चा भी इससे अच्छी कहानी लिख सकता है। ईसॉप्स फेबल्स पढ़ लें, कुरान से 1000 साल से ज्यादा पुरानी है और परफेक्टली प्रिजर्व्ड। और जहां तक कुरान की खूबसूरत ज़ालिकल किताबुल रैब फीही की बात है, तो लेडीज एंड लेडर्स, प्लीज अलाउ मी टू प्रेजेंट तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, ये अल्लाह कह रहा है। अबू लहब बेचारा मोहम्मद का मामू था यार। ये है इस्लाम के फैमिली वैल्यूज। मामू को ही मामू बना दिया। वाह क्या सीन है। कीड़ा नंबर 4, शरिया का शावरमा, फिर का सैंडविच। शरिया क्या है? एक बेहुदा, गैर इंसानी, गैर अखलाकी, शैतानी कानून। कहां से आया? बेहुदा, गैर इंसानी, गैर अखलाकी कुरान और हदीस से। और ये 3 इडियट्स, मालिक, शाफी और हम्बल, इन्हीं के नाम से ये फिरके बने हुए हैं, मालिकी, शाफी और हम्बली। एक और नमूना चमूना भी है, अबू हनीफा, उस पे भी बात करते हैं। मगर ये 3 ब्लाइंड माइस इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मालिक का चेला शाफी था और शाफी का चेला हम्बल था। तो भाई अगर एक ही उस्ताद था
तो 2 एक्स्ट्रा मजहब बनाने की क्या जरूरत थी, हैं? इससे तो बिल्कुल ही नहीं जाहिर होता कि इस्लाम और इसके फिरके इंसान के बनाए हुए हैं, और ये शरिया और ये फिक्र, ये इजमा और ये इज्तिहाद, यही गंदे दांतों वाले मुल्ला यही करते आ रहे हैं। इस्लाम में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो फतवे देते हैं वो वोट नहीं लेते, जाने लेते हैं, और जो इजमा होता है वो फाइनल होता है। उसमें आप और हम से नहीं पूछा जाता कि पप्पू तू क्या चाहता है। और ये जो यूट्यूब के मुफ्ती पुफ्ती हैं, इनको सुन के तो यही लगता है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है मुफ्ती बनने के लिए। बस एक अदद दाढ़ी, दिमाग खाली, और शुरू करो इस्लाम की रखवाली। No one is ever too stupid to not be allowed to become a mufti. और फिर देवबंदी भी हैं, सलफी हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, इस्माइली हैं, पता नहीं क्या क्या है। और ये सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शियाज से तो कुछ ज्यादा ही। और वो हमारे अब्बू हनीफा का क्या, इनका फिरका सबसे बड़ा है। इनको अल मंसूर ने अंदर कर दिया था, कोड़े भी मारे, बेचारे जेल में ही मर गए। क्यों? क्योंकि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, और इसका बादशाहों और हुक्मरानों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही है इस्लाम, यही है रिलीजन। स्टेट स्पॉन्सरशिप के बगैर इस्लाम का भी वही हाल होता जो नॉर्स मिथोलॉजी का हुआ है। जो खलीफा जैसा चाहता इस्लाम को मोल्ड कर देता। वैसे भी इस्लाम की ये थकी हुई हिस्ट्री में मुझे इतना भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, सोचने वाले सोचें, क्या ये जो आप शरीयत करते हैं, तो भाई किसकी शरीयत? अरब की शरीयत, अब्बासियों की शरीयत, अबू हनीफा की शरीयत, और काहे की शरीयत? भाई आज 9 साल के बच्चे को किसी भी 9वीं सदी के मालिक के हमल से ज्यादा अकल है। आज 9 साल का बच्चा अगर टाइम ट्रैवल करके 9वीं सदी या 7वीं सदी में चला जाए तो ये बाबे उसको पूजना शुरू कर देंगे। और इन बाबों को क्या पता था भाई? इनको ये नहीं पता था कि सूरज रात को कहां जाता है। इनसे हम कानून सीखेंगे क्यों? और इन बाबों का कानून हम 21वीं सदी में नाफिज करना क्यों चाहते हैं भाई? पीके हो क्या? ये कानून तो 7वीं सदी में भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। बस तलवार, बदमाशी, इंपीरियलिज्म, धिम्मी, जिजिया, टोटलिटेरियनिज्म, फैशिज्म और 1400 साल पुराना बुद्धा प्लॉट। मेरे दोस्त जफर हेरेटिक ने कहा था, इस्लाम सिर्फ ईगो का गेम है, और ये मजहब और फिरकों से साफ नजर आता है। मेरे फिके का स्कूल सबसे बड़ा है, मैं सही हूं, तू झूठा है, शिया काफिर, फलाना काफिर। हर चीज में इंसान की उंगलियों के निशान, इंसान का ईगो। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स का तो नामो निशान ही नहीं नजर आता। कुरान, इस्लाम एक सिंपल रिलीजन, एक मुकम्मल मजहब, दीन फितरत, जिसको समझने के लिए आपको हदीस, तफसीर, फिक्र, इजमा और पुफ्तियों और लौलवीज की जरूरत पड़ती है। नॉट सो सिंपल आफ्टर ऑल। शरीयत सिर्फ इस्लामिक इंपीरियलिज्म है बस, और वो भी अरब इंपीरियलिज्म। हाँ, अब शायद उसकी शक्ल चेंज हो गई है, मगर रूट वही है। और फिक्र की किताबों में सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा है, जहरीला कचरा। अगर शरीयत की 21वीं सदी में आपको शक्ल देखनी है तो अफगानिस्तान चाहिए, जहां इन मोटी तोंद वाले तालिबानी भेड़ियों को यह भी नहीं पता कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। शरिया एक ऐसा जहर है जो दुनिया को सिर्फ और सिर्फ तालिबान, बोको हराम और आइसिस जैसी लानत दे सकता है। और शरिया में नॉन मुस्लिम का क्या? हाँ, आप तो समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। शरिया में अगर एक मुसलमान एक काफिर का खून बहाए तो मगर सच तो यह है कि शरिया सबसे ज्यादा मुसलमानों का खून बहाता है, मुसलमानों के ही हाथ काटता है, मुसलमान औरत पर ही जुल्म करता है, और इसने मुसलमानों का ही जीना हराम किया हुआ है। तारीख गवाह है, तारीख आपके सामने है। और अगर फिर भी आपको शरिया का कीड़ा है तो हम आपके लिए अफगानिस्तान के एक फर्स्ट क्लास टिकट कटवाते हैं। तो चले। कीड़ा नंबर 5, हजरत महमूद, नबी,
या सुपारी किलर। अस्मा बिन्त मरवान एक कविता लिखने वाली, जिसने वही किया था जो मैं आज कर रहा हूं, तंज हमारे हजरत महमूद पर। उसकी सजा मौत, वो भी जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। अब आप कहेंगे कि ये स्टोरी तो झूठी है, तो फिर अपनी सीरत, अपनी तबकात, अपने साद, ये सब उठाकर फेंक दें, या फिर चेरी पिकिंग करेंगे। मोहम्मद के ऊपर कूड़ा फेंकने वाली हदीस बताऊं तो चलेगा। और हमारे रहमतुल्लिल आलमीन को जब पता चला अस्मा बिन्त मरवान के बारे में, तो आपने फरमाया कि 2 बकरे भी अपना सर इसके ऊपर नहीं टकराएंगे। यार इतना जुल्म तो माफिया वाले भी नहीं करते थे। सुपारी दे दी, काम हो जाएगा। क्या है यार ये। और फिर यहूदी पोएट अबू अफाक के नाम की सुपारी, काब बिन अल अशरफ की नाम की सुपारी, अब्दुल्ला बिन साद के नाम की सुपारी। ये इतनी लंबी लिस्ट है कि बनु कुरैज़ा को ना भी मेंशन करें तो घंटा लग जाएगा। क्यों? तौहीन, ईगो, जंगली कबायली सिस्टम। और ये आज भी हो रहा है। ये तौहीन नामूस रिसालत, ये ज़ॉम्बीज़, ये ऑटोमेटॉन्स, इन्हीं फेरी टेल्स की वजह से लोगों के खून के प्यासे, इन्हीं फेरी टेल्स की वजह से कन्हैया लाल आज अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं है। एक स्टोरी तो मैं जरूर शेयर करूंगा, जिससे वाकई लगता है कि ये इस्लामिक हिस्टोरियंस हजरत महमूद के कुछ ज्यादा ही फैन थे, उनको कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। ये बात मैंने पहले भी की है कि हदीस लिखने वालों ने खुद ही नबी को बदनाम कर दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये स्टोरी ही देख लें। बनु कुरैज़ा की एक औरत, जिसको खुद इस्लामिक ट्रेडिशंस में सिर्फ लाफिंग वुमन के नाम से जाना जाता है, उसको भी मार डाला। शायद वो अपने भाई, अपने बाप, अपने बेटे के खून होते देखकर पागल हो गई। हाँ? प्यारे नबी ने उसको भी उनके पास भेज दिया, रहमतुल्लिल आलमीन जो थे। तो ये थे इस्लाम के 5 कीड़े, और बहुत से हैं। इनके लिए आप मेरे फ्रेंड जफर हेरिटिक, हारिस सुल्तान, गालिब कमाल और हमारी रैशनल कम्युनिटी के चैनल को जरूर देखिएगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करना था। क्या कायनात का बनाने वाला अरबी बोलता है? इससे ज्यादा लैंग्वेजेस तो मेरे दोस्त की 10 साल की बच्ची बोल लेती है। और अरब में ही क्यों, मिडिल ईस्ट में ही क्यों, सारे पैगंबर लैंड लॉक्ड मिडिल ईस्ट में ही क्यों, पापुआ न्यू गिनी में क्यों नहीं, और मोहम्मद जैसे क्वेश्चनेबल कैरेक्टर के पास ही क्यों? और फिर ये कुरान की डिक्टेशन, ये हदीस, ये सीरा, ये मुल्ला की दुकानें, ये फतवा फैक्ट्रीज, क्यों? क्यों हम सिर्फ किसी के ईगो के लिए मार रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे से नफरत करते हैं? तू हिंदू, तू यहूदी, तू ये, तू वो, क्यों? खून सबका लाल होता है, कन्हैया लाल का खून भी लाल था। रैशनल बने, इंसान बने, इंसेन नहीं। जिद छोड़ दे, सब बंधन तोड़ दे, इस्लामियत की हद फोड़ दे। जय इंसानियत, जय रैशनैलिटी।